Hello everyone, welcome back to 10 Minute Tutorial with Priyanka Singh. I hope you all are doing well. So people, before starting the lesson, I have request to you, please do like also, because I have seen that many of you have seen the video but we are having less likes. So please do like also. It will boost my energy and that will make me more happy to make new videos. So please do that. Yes, so now start with the lesson. I hope you have watched the previous video also. So without wasting the time, we are going to start the lesson. So in previous video we were talking about the farming in Palampur. So in farming in Palampur we have talked about land is fixed in previous video, and one more thing we have talked about that uh, can we cultivate more crops from the same piece of land, that we have discussed, and that we have discussed green revolution also. So in today's video we are going to talk about two more topics of the farming in Palampur, and actually they are having 5 or 6 topics in the farming in Palampur. So two we have already discussed, and today we are going to discuss two more, and after that we'll discuss rest topic in the next video. Okay, so today we are going to talk about, will the land sustainable? The first topic we have already talked about, land is fixed, and the another one is a piece of land can be used for the cultivation of more plants, more than two plants, like this. And the next, now we are going to talk like, will the land sustainable? And another one is how the land is distributed in Palampur. These two topics we are going to discuss in today's video. So if we are talking about the sustainability, so yes, land is very precious to us. It's a natural resources that we are having from the nature. नेचर ने हमें लैंड दिया है, ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है. So it's our responsibility that we can make sure that we are not using it for unnecessary things. Like we have already talked about the green revolution. So let me tell you what is the meaning of sustainable. So यहाँ पे sustainable का meaning क्या हो गया, क्या जो मतलब लैंड है क्या हमेशा एक ही जैसा रहेगा, क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं. दिस इज़ द थिंग. सो लैंड जो है वो एक ही जैसा नहीं रहेगा ना. वो अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो एक तरह से, अगर हम उसको केयरफुली यूज़ कर रहे हैं तो वो सस्टेनेबल है, अगर नहीं तो वो प्रॉब्लम है, उसके लिए लैंड के लिए प्रॉब्लम है. तो हमने बात करा था ग्रीन रिवोल्यूशन का. सो वी वर टॉकिंग अबाउट सम नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्सो ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, दैट they are causing pollutions. So in green revolution I have already told that we are using fertilizers, chemical fertilizers. So in chemical fertilizers they do the instant reaction with the water, and after that the plant absorb all the things. जो भी मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स में होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करके प्लांट जो है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है. और जो बच जाता है वो ज़मीन में नो मिट्टी में चला जाता है. मिट्टी के अंदर जो वो चला जाता है तो उससे मिट्टी की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है. सो वी कैन सी दैट द फर्टिलाइजर दैट वी आर यूजिंग, दे आर मेकिंग द सॉइल इनफर्टाइल. सॉइल को वो बंजर बना रही है, उसकी जो फर्टिलिटी है उसको वो कम कर रही है. अनदर थिंग, कल हमने बात करा था कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग था उसमें वाटर जो होता है वो कम यूज़ किया जाता है, कम यूज़ होता है. बट इन ग्रीन रिवोल्यूशन वाटर का जो होता है, वाटर जो यूज़ हो रहा था ग्रीन रिवोल्यूशन फर्टिलाइज़र की वजह से वो ज़्यादा यूज़ कर रहे थे हम लोग. इरिगेशन में पानी जो है वो ज़्यादा लग रहा था. तो बिकॉज ऑफ इट वी आर लूजिंग ग्राउंड वाटर ऑल्सो. पानी ज़्यादा लग रहा है तो ग्राउंड वाटर भी हम लोग कम जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर पे भी अफेक्ट पड़ रहा है इससे, ग्रीन रिवोल्यूशन से. So we can see that yes, green revolution helped in cultivation to produce more grains, but other hands it's harming our nature also. It's harming the land also. It's harming the environment also.
It's because of that soil is getting polluted, water bodies are getting polluted, and due to that we are losing the groundwater also. These are the two things that hampering the nature. Okay, so next, I hope this is clear to you. Will the land sustainable? Yes, it is, but if we are taking care it carefully, then अगर कोई भी चीज़ को अगर हम लोग प्यार अच्छे से हैंडल करके नहीं रखेंगे तो वो ख़राब हो ही जाएगा. सो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम उसको प्यार से अच्छे से केयर करके रखें. ठीक है. सो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है वो है हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फैमिलीज़ ऑफ पालमपुर. तो पालमपुर में किस तरीके से लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. मैं आपको इसका एक नोट लिख करके मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी ताकि आप उसको स्क्रीनशॉट ले करके रख सकें. सो सबसे पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी. आप लोग देखते होंगे फैमिलीज़ होते हैं, आप लोग के आप लोग भी बड़े फैमिली से होंगे, कुछ लोग छोटे फैमिली से होंगे. तो दादाजी थे, दादाजी के 4 बेटे हो गए. अब उनको जो ज़मीन था, मान लो दादाजी के पास 5 बीघा ज़मीन है, मान लो उनके 5 बेटे हो गए. अब वो 5 बीघा ज़मीन पाँचों में बढ़ जाएगा, 1-1 बीघा हो जाएगा, राइट. So that's the problem that we are not able to make a cultivation in a wide range. So इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है पालमपुर में वो कैसा है, पालमपुर के फार्मर्स में कैसा है. सो हमने बात करा था कि 1/3 जो फैमिलीज़ है वो क्या है, वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं. हमने बात करा था इसमें. सो उसमें जो 1/3 फैमिली है पालमपुर में वो लैंडलेस है, यू कैन सी. सो वो लैंडलेस है, मतलब कि 1/3 कितना, 450 फैमिलीज़ थे. वी आर हैविंग वी रीड अबाउट दैट देयर आर 450 फैमिलीज़ ओवर देयर. सो उसमें से 1/3 तो कितने बच गए, 150 फैमिलीज़ हैं. फिर 150 फैमिलीज़ हैं जो लैंडलेस हैं, उनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए. तो वो क्या करते हैं ना, वो दूसरों के लैंड्स पे जाके फार्मिंग करते हैं, जैसे लेबर का काम वो लोग करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें कि बाकी के जो फैमिलीज़ हैं, जो दो, उसके बाद 240 जो फैमिली है पालमपुर में, ये हो गया 150 जो कि लैंडलेस है, बिल्कुल भी उनके पास लैंड नहीं है. उसके बाद 240 जो फैमिलीज़ हैं उनके पास जो लैंड है पर वो लेस दैन 2 हेक्टेयर्स है, 2 हेक्टेयर से भी कम उनके पास ज़मीन है. सो इसकी वजह से वो कल्टीवेशन वो प्लॉट पे वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं. और कुछ जो 60 फैमिली जो अपर कास्ट फैमिली हमने पढ़ा था पालमपुर में, तो अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, उनके पास है 2 हेक्टेयर से ज़्यादा या उससे ज़्यादा प्लॉट है, 2 हेक्टेयर और उससे बड़ा प्लॉट वहाँ पे है. तो मैंने आपको जब पहला वीडियो शेयर किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ पालमपुर, विलेज पालमपुर, उसमें मैंने आपको लैंड को भी दिखाया था कि लैंड किस तरीके से है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे कोई छोटा प्लॉट था, कोई बड़ा प्लॉट था, कोई बहुत बड़ा प्लॉट था. तो मैंने आपको उसमें वो दिखाया था. सो यही चीज़ है कि जो कल्टीवेशन जो होता है वो एक बड़े प्लॉट पे आसानी से किया जा सकता है. बड़े प्लॉट पे क्या होता है, मशीनरीज़ को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ट्रैक्टर चलाना है तो बड़े प्लॉट पे उसको यूज़ करना आसान हो जाता है, पर छोटे प्लॉट पे वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. छोटे प्लॉट पे क्या होता है कि हमारा इनकम भी इन्वेस्टमेंट भी लग जाता है और उतना इनकम हमारा उसमें से जनरेट नहीं हो पाता है. तो आई होप कि ये जो 2 पॉइंट था आपका, विल द लैंड सस्टेनेबल एंड हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन विलेज पालमपुर, ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा. तो येस, लैंड इज़ सस्टेनेबल इफ़ वी आर यूजिंग इट प्रॉपरली, बट इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली इट्स नॉट सस्टेनेबल. ओके. एंड द अनदर हैंड, क्या लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन पालमपुर में कैसा है, तो वो एक तरह का एक समान नहीं है. किसी के पास बहुत ज़्यादा प्लॉट है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी के पास छोटे छोटे टुकड़ों में प्लॉट है. तो जिसकी वजह से पालमपुर के लोगों को लैंड के कल्टीवेशन में प्रॉब्लम होती है. जिनके पास बहुत बड़ा प्लॉट है वो अच्छे से कल्टीवेट कर पाते हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं कर पाते हैं. ठीक है. सो आई होप कि ये टॉपिक आपका यहाँ पे क्लियर हो गया. अब बच जाता है इसमें 3 टॉपिक बच जाता है कि हु विल प्रोवाइड द लेबर,
एंड हाउ दे आर गेटिंग द कैपिटल्स, ये एक पॉइंट हो गया। और सरप्लस का वो लोग क्या करते हैं, ये एक पॉइंट हो गया। अब इसके बाद मैं आपको एक पूरा समरी इस टॉपिक का दे देती हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लोगे ताकि आपको फ्यूचर में काम आए। सो हियर इन पालमपुर, फार्मिंग इन पालमपुर, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। लैंड इज़ फिक्स्ड, इज़ देयर अ वे कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, ये भी हमने कल डिस्कस करा था। और विल द लैंड सस्टेनेबल, ये मैंने आपको अभी समझाया है, ठीक है। तो इसको आप एक नोट की तरह भी अपने पास रख सकते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या होता है, सॉइल में फर्टिलिटी जो होती है वो बढ़ती है, और हम लोग जो है वो ग्राउंड लेवल वाटर को जो है वो लूज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टीज होते हैं। ये सब क्या है ना, जल्दी से रीस्टोर नहीं किया जा सकता है। फिर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये मैंने आपको बताया था कि 1/3 जो है उनके पास जो बिल्कुल लैंडलेस हैं, वो कल्टीवेशन के लिए उनके पास बिल्कुल लैंड नहीं है, वो दूसरों की जगह पे जा कर के कल्टीवेट करते हैं। 240 फैमिली है जो कि कल्टीवेट करती है स्मॉल प्लॉट्स पे। 60 फैमिली है जो कि 2 हेक्टेयर और उनसे ज़्यादा उनके पास है। और ये बच गया हमारा टॉपिक, हु विल प्रोवाइड द लेबर, द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग एंड सेल ऑफ सरप्लस। सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं आपकी डाउट्स को क्लियर कर सकूं। सो टेक केयर एवरीवन एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप, मैंने देखा है व्यूज़ बहुत हैं चैनल पे पर लाइक नहीं है, तो अगर आप देख रहे हो तो उसके साथ देखते के साथ उसको प्लीज़ लाइक भी करना शुरू कर दें। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।